بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ بیٹھے بیٹھے اچانک ہی مجھے محسوس ہوا کہ زمین ہل رہی ہے۔ کچھ زلزلے جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دی۔ سامنے نظر پڑی تو ایک لمحے کو تو لگا جیسے میری سانس رک جائے گی۔ میں جس جگہ حصار بنا کر بیٹھا ہوا تھا اس کے عین سامنے موجود ایک قبر درمیان سے پھٹ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ پھر اس قبر کی مٹی اچانک ہی اوپر کی طرف اٹھی اور اس میں سے ایک ڈھانچہ نکلتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا دل بند ہو جائے گا۔ اتنا خوفناک نظارہ میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ چلنا شروع کرتے وقت اس بات کا تو مجھے علم تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا، مگر یہ اتنا مشکل ہوگا اس کا اندازہ مجھے اب ہو رہا تھا۔ وہ ڈھانچہ جب اس پھٹی ہوئی قبر میں مکمل طور پر کھڑا ہو چکا تو اس نے اچانک ہی ایک جھٹکے سے سر گھما کر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے گڑھے میں سرخ شعلے جل رہے تھے۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے اپنا بھر سا منہ کھولا اور اپنے ہاتھ میری طرف بڑھا دیے جو مسلسل لمبے ہو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں بری طرح سے کانپنے لگا۔ مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، لیکن ایسی حالت میں بھی میں نے اپنے حواس برقرار رکھے۔ میں یہ وظیفہ ادھورا نہیں چھوڑ سکتا تھا، ورنہ اس کے اثرات بے حد خوفناک ہو سکتے تھے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور پوری دل جمعی سے وظیفہ پڑھنے لگا۔ میرا خواب بس ایک رات کی دوری پر تھا۔ اب میں پیٹھ دکھا کر نہیں بھاگ سکتا تھا۔ میری زندگی اور میری مرتی ہوئی بیٹی کی زندگی اب اس چلے پر ہی منحصر تھی۔ ڈھانچے کے ہاتھ قریب آ رہے تھے۔ میں نے لمحوں میں فیصلہ کر لیا، نہیں، اب میں نہیں بھاگوں گا، پھر انجام چاہے کچھ بھی ہو، زندگی یا موت۔ لیکن اب جو بھی ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا، آر یا پار۔ اس سوچ نے مجھے تقویت بخشی اور میں پورے جوش و خروش سے منتر پڑھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید واقعہ بتاؤں، میرا آپ سے متعارف ہونا ضروری ہے۔ میرا نام جاوید ہے اور میں پیشے کے لحاظ سے ایک گورکن ہوں۔ گڑھی سلطان نامی گاؤں میں ایک قبرستان کے کنارے پر بنی ہوئی کوٹری میں اپنی بیوی اور 3 بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ لوگ کسی کے مرنے پر دکھی ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے کسی کی موت کی خبر سن کر خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مرنے والا اپنے ساتھ میری روزی لے کر آتا ہے۔ کسی کے لیے قبر کھودتا ہوں تب ہی 4 پیسے ملتے ہیں۔ کہنے کو تو گاؤں والے مجھے مہینے کے 5,000 دیتے ہیں، مگر آج کل 5,000 کی اوقات ہی کیا ہے۔ ان سے تو میرے گھر کے سودے سلف کا بھی آدھا خرچہ ہی بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ ہم لوگ ایک وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھاتے ہیں تو دوسرے وقت ہمیں بھوکے پیٹ ہی سونا پڑتا ہے۔ ایسے میں آپ لوگوں کو شاید میری یہ حرکت بہت بری لگے، لیکن میں مجبور ہو کر قبر کھدوانے کے لیے آنے والے سے چند 100 روپے ضرور لے لیتا ہوں تاکہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کی موت کی خبر سن کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور میں بے چینی سے انتظار کرتا ہوں کہ کب کوئی قبر کھدوانے کے لیے میرے پاس آتا ہے۔ مجھ سے پہلے میرا باپ بھی گورکنی کا کام ہی کیا کرتا تھا، مگر اس وقت کا زمانہ نسبتاً سستا تھا، شاید اسی لیے تھوڑے پیسوں میں بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ مگر آج کل کا زمانہ بہت مختلف تھا، اس لیے میں گورکنی کے علاوہ کچھ اور کام کرنے پر بھی مجبور ہو جاتا تھا۔ میری بیوی بھی لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنے اور بچوں کے خرچے پورے کرنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں لوگ ہم سے کراہت محسوس کیا کرتے تھے، اس لیے اسے بھی زیادہ کام نہیں ملتا تھا۔ میرے دونوں بیٹے اور بیٹی دن بھر قبرستان کے آس پاس کھیلتے رہتے تھے۔ تعلیم کی کمی اور گھر کی بدحالی نے انہیں بے حد اجڑ، جاہل اور خود سر بنا دیا تھا۔ یہ قبرستان گاؤں سے باہر اور الگ تھلگ تھا۔ رات میں یہاں عجیب و غریب جانور نظر آتے تھے اور ان کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ میرے بیوی بچے رات بھر ڈرے رہتے تھے، مگر مجھے کوئی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اگر کسی کو ضرورت پڑتی تو میں رات کے وقت بھی کھدائی کر لیتا تھا۔ اس روز بھی گاؤں میں کسی کی موت ہو گئی تھی۔ مرنے والی ایک جوان سال لڑکی تھی۔ وہ بہت عرصے سے بیمار تھی۔ اس کا ایک رشتہ دار مغرب کے وقت میرے پاس آیا اور کہنے لگا، جاوید، جنازہ نماز عشاء کے بعد ہے، تب تک قبر تیار رکھنا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے چند روپے میری مٹھی میں پکڑا دیے۔ میں نے سر ہلا کر کہا، ٹھیک ہے بابو جی، میں ابھی سے کام پر لگ جاتا ہوں۔ میں نے گھر سے کدال اور بیلچہ اٹھایا، اپنے بڑے بیٹے کو ساتھ لیا
और कब्रिस्तान में उस शख्स की बताई हुई जगह पर कब्र खोदने लगा। कब्र खोदते खोदते अचानक ही मुझे ऐसा लगा जैसे कोई कहीं से छुपकर मुझे देख रहा है। मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। आसपास अंधेरा छा रहा था, इसलिए मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। पता नहीं क्यों मुझे घबराहट सी होने लगी। मैंने बाहर बैठे हुए अपने बेटे शहबाज को आवाज दी। वो मिट्टी के ढेरी पर बैठकर नीचे झांकने लगा। क्या बात है अब्बा? मैंने पतहवासी छुपाते हुए कहा। कुछ नहीं, मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम बैठे हुए हो या घर भाग गए हो। उसने मुंह बनाकर कहा। बैठा हूँ अब्बा, खुद तो काम में लगे हुए हो, मुझे ख्वामोखाही बांध कर बिठा दिया है। मैंने पुरसुकून होकर एक गहरी सांस लेते हुए कहा। बस बस, ज्यादा बकवास न करो, बैठे रहना इधर ही, लेकिन पहले मुझे बेलचा पकड़ाओ। उसने मुझे बेलचा पकड़ा दिया। थोड़ी देर तक ही मैंने कब्र तैयार कर ली और इंतजार करने लगा। लाश को लाया गया और सब लोग उसे मिट्टी के हवाले करके चले गए। मैं भी खुशी खुशी वापस घर पहुंचा। उस दिन कुछ पैसे जेब में थे तो मैं दुकान से कुछ सौदा ले आया। जब भी कोई ऐसा मौका आता था तो हमारे यहाँ कुछ अच्छा खाना पकता था। मेरी बीवी खाना बनाने लगी और मैं थकन उतारने के लिए आंगन में बिछी चारपाई पर लेट गया। खाना खाकर हम लोग सोने के लिए लेट गए। रात के किसी वक्त अचानक ही मेरी आंख खुल गई। पहले तो मैं चंद लम्हे तक गौर करता रहा कि आखिर मेरी आंख क्यों खुल गई है, क्योंकि मैं अमूमन बहुत गहरी नींद सोया करता था। थोड़ी देर तक खामोशी से लेटे रहने के बाद मैं पानी पीने के लिए उठा। घड़ा कोठरी के गिर्द बनी छोटी सी चारदीवारी के दरवाजे के करीब रखा हुआ था। मैं पानी पीने के लिए जो ही दरवाजे के करीब आया, अचानक ही मेरी समाज से एक आवाज टकराई। मैं कान लगाकर सुनने लगा। चंद लम्हे बाद मैंने पहचान लिया कि वो आवाज जमीन खोदने की थी और वो कब्रिस्तान की तरफ से आ रही थी। मैं चौंक गया। इतनी रात गए आखिर कौन था जो वहाँ खुदाई कर रहा था? तजस्सुस ने मुझे मजबूर किया तो मैंने आहिस्ता से बिना आवाज किए दरवाजा खोला, लाठी हाथ में उठाई और बाहर निकल आया। मैं बहुत एहतियात से कदम उठा रहा था। आवाज उस तरफ से आ रही थी जिधर आज मैंने ताजा कब्र बनाई थी और जहाँ पर आज लाई जाने वाली लड़की दफन थी। मैं दरख्तों और कब्रों की आड़ लेता हुआ उस तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद मुझे ठटक कर रुक जाना पड़ा। चंद कदम की दूरी पर वही ताजा कब्र थी, लेकिन जिस चीज ने मुझे सर से पैर तक कांपने पर मजबूर कर दिया वो उस कब्र को खोदने वाला शख्स था। उस रात आसमान पर बादल थे जिनकी वजह से चांद की रोशनी ना होने के बराबर थी, मगर उस हल्की सी रोशनी में भी मैंने इतना तो देख ही लिया था कि उस शख्स ने सर से पैर तक एक लंबा सा सियाह चोगा पहन रखा था। वो बेलचे से मिट्टी हटाता जा रहा था, लेकिन वो कब्र क्यों खोद रहा था? और जो कब्र मैंने बनाई थी उसकी मिट्टी तो इतनी नरम थी कि हाथ से भी हटाई जा सकती थी। फिर ये इतनी आवाज क्यों हो रही थी? मैं एक बड़ी कब्र के पीछे छुपकर बैठ गया और उस शख्स की कार्रवाई को गौर से देखने लगा। थोड़ी देर बाद उसने बेलचा एक तरफ फेंका और कब्र पे रखी हुई सिलें हटाने लगा। थोड़ी देर के बाद वो कब्र में घुस गया और चंद मिनट के बाद जब बाहर आया तो उसने हाथ में कुछ उठा रखा था। उसके बाद उसने कब्र को उसी तरह बंद कर दिया और जल्दी जल्दी मिट्टी वापस डालने लगा। चंद लम्हात के बाद वो एक तरफ दौड़ता हुआ गायब हो गया। मैं सुन सा वहां बैठा रहा। सच्ची बात तो ये थी कि मुझे डर भी बहुत लग रहा था। पता नहीं वो कौन था, लेकिन जो भी हो वो कोई आम शख्स तो नहीं हो सकता था, वरना इतनी रात गए इस दीदा दुलेरी से कब्र क्यों खोदता। खैर मैं उसी तरह खामोशी से वापस अपने घर में चला आया। रात का बकिया हिस्सा मुझे ठीक से नींद न आई। सुबह जब कुछ रोशनी हुई तो मैं एक बार फिर उसी जगह चला गया। ये देखकर कांप गया कि उस शख्स ने मेरा ही बेलचा इस्तेमाल किया था। उसने उस लड़की के साथ वाली कब्र खोदी थी जो कोई 2-3 साल पुरानी थी। कब्र से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे खोदा गया है। मैंने जल्दी से आसपास से खुश्क मिट्टी इकट्ठी की और कब्र पर डालने लगा। वो तो शुक्र था कि आज सुबह सवेरे कोई शख्स यहाँ नहीं आया था, वरना इस खुदी हुई कब्र के पास मेरा बेलचा पड़ा देखकर वो यही सोचता कि मैंने कब्र खोदी है। फिर ये गांव वाले मेरे साथ क्या सलूक करते, इससे आगे सोचकर ही मैं कांप गया। कब्र को दुरुस्त करके मैंने सुकून का सांस लिया। उसके बाद मैंने आसपास तवज्जो दी। वो शख्स जिस तरफ गया था उधर उसके कदमों के निशानात मौजूद थे।
तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर मैं उन निशानात का पीछा करने लगा। वो जरा आगे जाकर कब्रिस्तान के गिर्द बनी चार दीवारी की तरफ चले गए थे और एक तरफ जहाँ पर से वो दीवार टूटी हुई थी वो बाहर कूद गया था। उसके बाद पक्की सड़क थी जिसकी वजह से उसके कदमों के निशान मादूम हो गए थे। मैं नाकाम होकर वापस लौटने लगा कि अचानक ही मेरी नजर एक किताबचे पर पड़ी। ये एक चंद सफ़हात का छोटा सा किताबचा था। मैंने जल्दी से उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया, फिर बेलचा उठाया और घर चला आया। थोड़ी देर बाद कब्रिस्तान आने वाले लोग आने लगे। ऐसे में मुझे उनके ईमा पर पानी भरना और कब्रों पर छिड़काव करना पड़ता था। खैरियत गुजरी कि किसी को रात वाली कब्र के बारे में कुछ शक नहीं गुजरा था। दिन का अक्सर हिस्सा तो इसी तरह मसरूफ गुजर जाता था। रात को घर में सब जल्दी सो जाते थे। मुझे भी अभी तक इस किताबचे को खोलने और पढ़ने का मौका नहीं मिला था। शाम को जब बच्चे खेलने में मसरूफ थे और मेरी बीवी खाना बनाने में लगी थी, उस वक्त मौका मुनासिब समझते हुए मैंने अपने घर के इकलौते कमरे में जाकर वो किताबचा खोला। ये 12-15 सफ़हात पर मुश्तमिल था। मैंने अटक अटक कर पढ़ना शुरू कर दिया। 5वीं में अगरचे मैंने पढ़ना छोड़ दिया था, मगर फिर भी उर्दू और अरबी के अल्फाज पढ़ लेता था। इस किताबचे में मुख्तलिफ अमल लिखे हुए थे। कहीं पर महबूब को मसखर करने का अमल लिखा हुआ था, कहीं पर दुश्मनों को बर्बाद करने का अमल था। मैं सफ़हात पलटने लगा। मुझे ये बिल्कुल बेकार सी चीज लग रही थी, लेकिन आखिरी सफ़ा पलटते पलटते मैं रुक गया। यहाँ पर एक ऐसा अमल लिखा था जिसकी शायद इस दुनिया में किसी को शदीद जरूरत थी तो वो सिर्फ मैं ही था। मैं उसके बारे में सोचने लगा। अगले दिन जब मैं नाश्ता करके कब्रिस्तान में जाने लगा तो मेरी बीवी ने मुझे कहा, जावेद, रिमशा की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं हो रही। अब तो रोज ही तेज बुखार हो जाता है। मैंने घर में मौजूद दवाइयाँ दी हैं, मगर उससे भी अब कोई फायदा नहीं हो रहा है। आज तुम जाते हुए डॉक्टर से पूछ आना। ये सुनकर मैं सख्त परेशान हो गया था, क्योंकि महीने के आखिरी दिन चल रहे थे और अभी तो मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलनी थी। गांव वाले जो तनख्वाह देते थे वो भी इतनी कम होती थी कि बमुश्किल हमारा गुजारा हो पाता था। मैंने परेशानी से कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? अब मैं इस वक्त कहाँ से पैसे लाऊं? मेरी बीवी ने जवाब दिया, मैंने सोचा कि मौसमी बुखार है, खुद ही उतर जाएगा। मैं परेशानी से कब्रिस्तान जाने के बजाय गांव में मौजूद अस्पताल की तरफ चल पड़ा। वहां जाकर मैंने डॉक्टर को अपनी बेटी के बारे में बताया। डॉक्टर ने बेटी को साथ ले आने को कहा। वहां से मैं दिल पर बहुत सा बोझ लिए वापस आ गया और कब्रिस्तान के दरवाजे पर बैठ गया। रिमशा के उस ना वक्त की बीमारी के बारे में सोच सोच कर दिल दहल रहा था। अपने हालात को देखते हुए मुझे एक बार फिर उस अमल का ख्याल आया। क्यों ना मैं वो अमल करना शुरू कर दूं? कम से कम इस सब्र से तो जान छूटेगी। मगर पता नहीं क्यों इस बारे में सोचकर मुझे वो कब्र खोदने वाला बंदा याद आ जाता था और निडर होने के बावजूद मैं अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस करता था। दिन भर इन्हीं परेशान कुन ख्यालात के ताने बाने बुनते गुजर गया था। जब शाम हुई तो मैं अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे देखकर कहा, मुझे शक है कि तुम्हारी बेटी को टाइफाइड है, मगर मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता। मैं तुम्हें कुछ टेस्ट लिख कर दे रहा हूँ, शहर जाकर ये टेस्ट करवाओ, उसके बाद हम इसका इलाज कर सकेंगे। ये सुनकर मैं परेशान हो गया। टाइफाइड? मगर डॉक्टर साहब, इसे बुखार तो 2-3 दिन पहले ही हुआ है। मैंने कहा, जरूरी नहीं है कि बुखार ज्यादा अरसा होने के बाद ही टाइफाइड हो। इसकी कंडीशन मुझे ऐसी ही लग रही है, मगर अभी कंफर्म नहीं है। ये तो टेस्ट के बाद ही मालूम होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं कल ही इसके टेस्ट करवा के लाता हूँ, मैंने कहा और अस्पताल से बाहर आ गया। दूसरे दिन मैं शहर टेस्ट करवा के रिपोर्ट्स लेकर आया और डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखकर फिक्रमंदी से कहा, तुम्हारी बेटी को टाइफाइड हो गया है और बिगड़ भी चुका है। अगर अभी भी मुकम्मल इलाज न किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की ये बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं सख्त परेशान हो गया था। मैं इलाज कहाँ से करवाता, जबकि मेरे पास फूटी कौड़ी भी न थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम वापस घर में दाखिल हुआ। मेरी बीवी ने मुझे आते देखा तो काम छोड़कर तेज तेज कदम उठाती हुई मेरे करीब आ गई और कहने लगी, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? हमारी बेटी को टाइफाइड है, वो भी बिगड़ गया है। अगर इलाज न किया गया तो वो मर जाएगी। मैंने दुख से कहा, तुम गांव वालों से बात करो, क्या पता वो ही कुछ मदद कर दें।
मेरी बीवी ने नम आंखों से मुझे देखते हुए कहा। दूसरे दिन मैंने गांव वालों से बात की। मेरी बेटी बीमार है, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी कुछ मदद करें। मैंने मिन्नत भरे लहजे में गांव के मुखिया से कहा। मेरी बात सुनकर उसने अकड़ कर रउनत से मुझे जवाब दिया, देखो भाई, हम पहले ही तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं, इससे ज्यादा हमारे पास और पैसे नहीं है। तुम लोगों को तो रोज ही पैसे चाहिए होते हैं, हम अपना खर्चा पूरा करें या तुम्हारा। उसकी बात सुनकर मैं आंसू बहाते हुए घर आ गया। मुझसे अपनी बेटी की तकलीफ अब देखी नहीं जा रही थी। वो सुबह से नीम गशी की हालत में पड़ी हुई बुखार में पक रही थी, उसे कोई होश नहीं था। मैं उसे देखकर सोचने लगा, यहाँ रहने वाले लोग भी कितने बेहिस हैं। किसी की मजबूरी और तकलीफ का भी ख्याल नहीं है, न किसी इंसान की जिंदगी की परवाह है। अपनी बेबसी महसूस करके मैं फूट फूट कर रो पड़ा। बहुत देर बाद जब दिल कुछ हल्का हुआ तो अपनी जेब में पड़ा हुआ किताबचा निकालकर देखने लगा। क्या पता इसमें से कुछ मिल जाए, कोई रास्ता नजर आ जाए। मैंने उस किताबचे को उठाया, उसको खोला तो मैं चौंक गया। मैं आखिरी सफे पर मौजूद अमल को तो बिल्कुल ही भूल गया था। जिन्नात का खजाना हासिल करने वाला अमल। ये अमल एक बहुत ही मुश्किल अमल है। इसको करने वाला अगर कामयाब हो जाता है तो वह जिन्नात के खजाने का मालिक बन जाता है। अगर कामयाब नहीं हो पाता तो अपनी जान से भी जा सकता है। अमल की शर्त यह है कि इसे 3 रातों तक 2 पुरानी कब्रों के दरमियान चिल्ला काट कर करना होगा। कब्रें कई साल पुरानी हो। अगर ये अमल करने वाला 3 रातों का चिल्ला काटने में कामयाब हो गया तो वो जिन्नात का खजाना हासिल कर लेगा। मैं उसको पढ़कर सोचने लगा कि अगर मैं ये अमल करने में कामयाब हो गया तो हो सकता है मुझे वो खजाना मिल जाए और मैं अपनी बेटी की जान बचा सकूं। लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो मेरी जान भी जा सकती है। मगर मैंने बेटी की खातिर बहुत मजबूर होकर ये अमल करने का फैसला कर लिया था। उस रात मैं सबके सोने के बाद चुपके से घर से निकल आया। कब्रिस्तान के आखिरी कोने पर बनी हुई 2 पुरानी कब्रों के दरमियान लकीर खींचकर बैठ गया। मैंने उस किताबचे में लिखा हुआ वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मुझे उसको पढ़ते हुए आधा घंटा ही हुआ था कि मुझे कुत्तों के जोर जोर से गुर्राने की आवाजें सुनाई दी। मैंने सर उठाया तो मेरे सामने कुत्तों का पूरा टोला लंबी जबानें निकाले खड़ा था। उनके मुंह से राल टपक रही थी। वो कुत्ते कोई आम कुत्तों जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि बहुत ही खौफनाक और जिसामत में भी बहुत बड़े लग रहे थे। वो मुझे देखते हुए जोर जोर से भौंकने लगे और उछलकर मुझ पर झपटने की कोशिश करते रहे, मगर मेरी खींची हुई लकीर के अंदर नहीं आ पा रहे थे। मेरा दिल बहुत बुरी तरह धड़के जा रहा था, गोया पसलियां तोड़कर बाहर निकल जाएगा। मगर मैंने अपने औसान बहाल रखे और वजीफा इसी तरह जारी रखा जैसे उस किताबचे में लिखा हुआ था। बाकी की रात खैरियत से गुजरी। सुबह होते ही मैं घर की तरफ भागा। दूसरी रात बैठे अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि जमीन हिल रही है। कुछ जलजले जैसा महसूस हो रहा था। मैंने डरते डरते आंखें खोल दी। सामने नजर पड़ी तो एक लम्हे को तो लगा जैसे मेरी सांस रुक जाएगी। मैं जिस जगह हिसार बनाकर बैठा हुआ था उसके ऐन सामने मौजूद एक कब्र दरमियान से फट रही थी। रफ्ता रफ्ता वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। फिर उस कब्र की मिट्टी अचानक ही ऊपर की तरफ उठी और उसमें से एक ढांचा निकलता हुआ दिखाई दिया। ये सब कुछ देखकर मुझे लग रहा था जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। इतना खौफनाक नजारा मैंने कभी नहीं देखा था। चिल्ला शुरू करते वक्त इस बात का तो मुझे इल्म था कि ये आसान नहीं होगा, मगर ये इतना मुश्किल होगा इसका अंदाजा मुझे अब हो रहा था। वो ढांचा जब उस फटी हुई कब्र में मुकम्मल तौर पर खड़ा हो चुका तो उसने अचानक ही एक झटके से सर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों के गड्ढे में सुर्ख शोले चल रहे थे। उसने वहीं खड़े खड़े अपना भर सा मुंह खोला और अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिए जो मुसलसल लंबे हो रहे थे। ये सब देखकर मैं बुरी तरह से कांपने लगा। मुझे यकीन हो चुका था कि मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, लेकिन ऐसी हालत में भी मैंने अपना हवास बरकरार रखे। मैं ये वजीफा अधूरा नहीं छोड़ सकता था, वरना इसके असरात बेहद खौफनाक होते। मैंने आंखें बंद कर ली और पूरी दिलजमई से वजीफा पढ़ने लगा। मेरा ख्वाब बस एक रात की दूरी पर था। अब मैं पीठ दिखाकर भाग नहीं सकता था। मेरी जिंदगी, मेरी मरती हुई बेटी की जिंदगी अब इस चिल्ले पर ही मुनहसर थी। ढांचे के हाथ करीब आ रहे थे। मैंने लम्हों में फैसला कर लिया, नहीं, अब मैं नहीं भागूंगा।
फिर अंजाम चाहे कुछ भी हो, जिंदगी या मौत, लेकिन अब जो भी होना है वो होकर ही रहेगा, आर या पार। इस सोच ने मुझे तकवीत बख्शी और मैं पूरे जोशो खरोश से मंत्र पढ़ने लगा। ढांचे के हाथ बड़ी तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहे थे, मगर मैं नहीं भागा। जैसे ही वो मेरे करीब आया तो मैंने मंत्र को पढ़ते हुए उसकी तरफ फूंक मारी। अगले ही लम्हे वो सारा मंजर गायब ही हो गया। मैंने सुकून की सांस ली। ओह, तो वो सारा मंजर दर हकीकत कोई फरेबे नजर था, सिर्फ मुझे डराने के लिए एक खेल खेला गया था। अब मैं मजीद पुरुम्मीद हो गया। मुझे लग रहा था कि मैं अमल मुकम्मल कर लूंगा। बस एक रात की मजीद दूरी पर है मेरी कामयाबी की मंजिल। उसके बाद सुबह तक कोई खास वाकया पेश नहीं आया। मैं सुबह फजर की अजान सुनते ही घर पहुंच गया और अंदर जाकर लेट गया। उन 3 दिनों में मैं दिन में सो जाता था। घर में मैंने अपनी बीवी से ये कह रखा था कि मैं बीमार हूँ। इस दौरान मेरी बेटी की हालत मजीद बिगड़ती जा रही थी। वो सूख कर कांटा हो रही थी, लेकिन मैं सब्र के घूंट भरकर उसकी इस हालत को देखता रहा। मुझे इल्म नहीं था कि इस अमल का नतीजा अच्छा होगा या बुरा, लेकिन मेरे हालात के मुताबिक एक यही अमल था जो मुझे इस गुर्बत और तंगी से निजात दिला सकता था। दोपहर को मैं सोकर उठा तो जरा बाहर चक्कर लगाने के लिए निकल आया। उस वक्त हर तरफ सन्नाटा ही छाया रहता था। गांव के रास्ते सुनसान ही रहा करते थे। मैंने कब्रिस्तान के इर्द गिर्द एक चक्कर लगाया। अचानक ही मैं ठटक गया। मुझे एक गंदे होलिये वाला सियाफाम शख्स टूटी हुई दीवार के करीब जमीन को गौर से देखता हुआ नजर आया। कहीं ये वही तो नहीं जो उस रात कब्र खोद रहा था? इस सोच के आते ही मैं जल्दी से उस दरख्त की आड़ में छुपकर खड़ा हो गया और उसकी हरकत को गौर से देखने लगा। वो चंद लम्हे तक वही खड़ा रहा, फिर इधर उधर देखने लगा। फिर उसकी नजरें गोया उस दरख्त पर जम कर रह गईं, जिसके पीछे मैं छुपा हुआ था। मैं मजीद सिमट गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चंद लम्हे बाद उसने मुझ पर से नजरें हटा ली और पलटकर जाने लगा। मैं भी सुकून का सांस लेते हुए एक तरफ हो गया। अपनी धुन में मगन मैं आज रात के बारे में सोचते हुए घर की तरफ जा रहा था कि अचानक ही मेरे कदम जमीन ने जकड़ लिए। मेरे ऐन सामने वही शख्स खड़ा मुझे खौफनाक नजरों से घूर रहा था। उसे बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर अपने सामने खड़े देखकर मैं बुरी तरह बौखला गया। मेरा डर और बौखलाहट महसूस करते हुए उसने अपने जर्दी माइल दांत निकालकर मुझे देखा। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम और मेरे रास्ते में क्यों खड़े हो गए हो? हटो एक तरफ। मेरी बात सुनकर उसके होंठों से मुस्कुराहट गायब हो गई और चेहरे पर वहशत बरसने लगी। उसने हुर्रा कर जवाब दिया, तुझे ये सवाल पूछने का हक नहीं है। यहाँ पर मेरी कोई चीज खो गई थी और मुझे यकीन है कि वो चीज तेरे ही पास है। उसकी बात सुनकर मेरा खून खुश्क हो गया। मैंने बौखला कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सी चीज? मैंने तुम्हारी तो क्या किसी की भी कोई चीज कभी नहीं उठाई। वो हंसने लगा। उसकी हंसी में कुछ ऐसी दहशत और वहशत थी कि मैं कांप गया। वो चंद कदम चलकर मेरे बिल्कुल सामने खड़ा हो गया तो बदबू के एक जोरदार भपके से मेरा जी मतलाने लगा। उसने अपनी डरावनी आंखें मेरे चेहरे पर जमा दी और बोला, देख गोरकन, मैं जानता हूँ कि वो चीज तेरे ही पास है, लेकिन वो तेरे किसी काम की नहीं है। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि वो मुझे लौटा दो, वरना तू नहीं जानता कि मैं तेरा और तेरे खानदान का क्या हश्र कर सकता हूँ। उसकी आवाज में इस कदर गुर्राहट थी कि मैं उसकी बात पर संजीदगी से गौर करने पर मजबूर हो गया। मैंने चंद कदम पीछे हटकर अपनी जेब से वो छोटी सी किताब निकाली और उसे उसके सामने रखकर कहा, देखो, मुझे इल्म नहीं है कि तुम्हारी कौन सी चीज खो गई है, लेकिन मुझे गुज़िश्ता कुछ दिनों से और कुछ तो यहाँ नहीं मिला। हाँ, बस ये एक किताब मिली थी जिसमें मेरा कोई फायदा है ना नुकसान। अगर ये तुम्हारी है तो ले लो, अगर नहीं है तो मैं तुम्हारे सामने कसम खाकर कहता हूँ मैंने और कोई चीज नहीं देखी। उसने मेरे हाथ से किताब झपट ली और उसे खोल कर देखने लगा। फिर मुतमईन होकर उसने उसे बंद कर दिया और मुस्कुरा कर मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, दोस्त, यही तो वो खजाना है जो खो गया था। तुम्हारी मेहरबानी कि तुमने मुझे ये लौटा दिया। बहुत शुक्रिया। कभी भी जरूरत पड़े तो मैं हाजिर हूँ। मैंने पूछा, लेकिन तुम हो कौन? मैंने तो तुम्हें आज से पहले कभी भी यहाँ नहीं देखा, न तुम्हारा नाम पता जानता हूँ। उसने जवाब दिया, नाम में क्या रखा है, लेकिन खैर तुम्हारी आसानी के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। तुम मुझे सरकार के नाम से बुला सकते हो और मैं यहाँ से थोड़ी दूर नदी के किनारे जंगल में रहता हूँ।
वहाँ पर कच्ची सड़क के दाएं तरफ एक पगडंडी पकड़कर चलोगे तो सीधे मेरी झोपड़ी पर पहुँच जाओगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। ये कहकर वो तेज तेज कदम उठाता हुआ एक तरफ चल पड़ा। उस किताब के जाने का मुझे कोई खास गम नहीं था, क्योंकि उसमें मौजूद मंत्र मेरे हाफसे में अच्छी तरह महफूज हो गया था। मैं इत्मीनान से घर आकर सो गया। आज चिल्ले की आखिरी रात थी और शायद मेरी गुर्बत की भी। सरे शाम ही मैं उठकर बैठ गया था और इधर उधर टहलते हुए रात होने का बेचैनी से इंतजार करने लगा था। अल्लाह अल्लाह करके रात के 12 बजे और मैं अपनी मखसूस जगह पर दायरा बनाकर बैठ गया। मैंने अपना अमल शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद ही खौफनाक सी चीजें दिखाई देने लगी। मैं भी अब कुछ कुछ आदी हो गया था उस धम्मा चौकड़ी का, इसलिए मैंने उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं की और आंखें बंद किए अपने अमल में मसरूफ रहा। अमल खत्म होने से कुछ देर पहले अचानक ही मुझे किसी ने बेहद सुरीली और दिलकश सनाना आवाज में पुकारा, जावेद। मैंने चौंक कर आंखें खोल दी। सामने नजर पड़ते ही मैं दंग रह गया। मेरे सामने हिसार से बाहर एक खूबसूरत और नौजवान लड़की बैठी हुई थी। उसने बड़ा ही कीमती और हसीन जोड़ा जेब तन कर रखा था, जिससे उसका हुस्न छुपने की बजाय और नुमाया हो रहा था। उसका हुस्न आंखों को खैरा कर देने वाला था। मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब होने लगी। वो मखमूर निगाहों से मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मैं बेकाबू सा होकर कुछ आगे खिसक आया। कौन हो तुम? मैंने मधुर सी आवाज में उससे पूछा। वो हंस पड़ी और कहने लगी, मैं ही तो वो खजाना हूँ जिसके लिए तुमने इतने दुख झेले हैं। आज तुम्हारी हर एक तकलीफ, हर मुश्किल खत्म हो गई। तुम्हारा अमल कामयाब हो चुका है। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में लेकर चलूं जहाँ पर कोई दुख, कोई गम नहीं होगा। आओ न जावेद, आते क्यों नहीं? उसने इस कदर लगावट से कहा कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं बेइख्तियार आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक ही मेरे जहन को एक झटका सा लगा। मैं चंद लम्हे में ही वापस अपने हवासों में आ गया। मुझे अपनी बीमार बेटी का ख्याल आया और उसके साथ ही उस खूबरू हसीना की मुस्कुराहट में झलकती सफाकी नजर आई। नहीं नहीं, ये सब कुछ एक फरेब है, ये नजर का धोखा है। अगर मैंने हिसार से बाहर कदम रखा तो ये हसीन डाइन मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगी। इस सोच के आते ही मैं दोबारा नीचे बैठ गया और मैंने उससे कहा, मैं बाहर क्यों आऊं? अभी तो मेरा अमल मुकम्मल नहीं हुआ। हाँ, अगर तुम चाहो तो अंदर आ सकती हो। मुझे वापस बैठते हुए देखकर वो तिलमिला गई थी। उसने कहा, मैं अंदर कैसे आ सकती हूँ? तुमने ये जो हिसार बांधा हुआ है, अगर तुम इसे मिटा दो तो मैं बेझिझक तुम्हारे पास आ जाऊंगी। मैंने मुस्कुराकर उससे कहा, मैं ये हिसार मिटा दूं ताकि तुम आसानी से मेरा कलेजा चबा लो। नहीं मेरी जान, मैं इतना अहमक नहीं हूँ। मेरे इस अंदाज पर उससे सर से पैर तक आग लग गई। गुस्से में वो अपने असल रूप में आ गई, जिसे देखकर मेरा दिल हकीकतन दहल गया। उसकी खूबसूरत जुल्फें अब सांपों का जंगल मालूम हो रही थीं। कानों में आवेज़ों की जगह 2 बिच्छू लटक रहे थे। उसकी शक्ल बेहद खौफनाक और दहशत अंगेज बन चुकी थी। अगर मेरी जगह कोई कमजोर दिल का इंसान होता तो वो उसी वक्त डर और खौफ की शिद्दत से मर जाता। लेकिन मैंने अपने हवास सलामत रखे और अमल मुकम्मल करने लगा। वो गुस्से से बल खाने लगी, मगर मुझे अब उसकी कोई परवाह नहीं थी। मैं जानता था कि वो उस हिसार में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने अमल मुकम्मल कर लिया। सुबह की अजान हो चुकी थी और उसके साथ ही वो भी गायब हो गई और मेरे अमल का वक्त भी पूरा हो चुका था। मैं अब हिसार में बैठा सोच रहा था कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे क्या लिखा था वो मुझे याद नहीं रह सका था। अब क्या करूं? वो किताब तो सरकार लेके गया, अब मुझे कैसे पता चलेगा? पहले तो मैंने घर जाने का सोचा और उठ खड़ा हुआ। घर में अंदर कदम रखते ही मैं ठटक कर रुक गया। मेरी बीवी रो रही थी। मैं तेजी से तकरीबन भागते हुए उसके पास पहुंचा और उससे रोने की वजह पूछने लगा। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? खैर तो है ना? रिमशा तो ठीक है ना? मैंने बेचैनी से कहा। रिमशा की हालत बहुत बुरी है, वो तो अब आंखें भी नहीं खोल रही। खुदा के लिए कुछ करो, उसे किसी डॉक्टर के पास लेकर जाओ। अगर अब भी उसे कहीं नहीं लेकर गए तो वो मर जाएगी। उसने बहुत बुरी तरह रोते हुए मुझसे कहा। मैं बेबसी से उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा। बेटी की हालत देखकर मेरा दिल कट कर रह गया था। मेरे पास अब सरकार के पास जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहा था। तुम रिमशा को किसी अस्पताल में लेकर जाओ, मैं पैसे लेकर आता हूँ। डॉक्टर अगर कुछ कहे तो मेरे बारे में बताना, मैं बहुत जल्द आ जाऊंगा।
میں نے اپنی بیوی سے کہا اور جلدی سے باہر نکلنے لگا۔ جب میری بیوی نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور کہا، تم کہاں سے پیسے لاؤ گے؟ گاؤں میں سے کوئی پیسے دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا، اس کی فکر مت کرو، تم بس رمشا کو لے کر جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے میں اس راستے پر چلنے لگا جس کا پتہ سرکار نے دیا تھا۔ کچھ دور چلنے پر مجھے ندی بہتی ہوئی نظر آئی۔ اس کے بائیں جانب ایک پگڈنڈی جا رہی تھی۔ میں اس پر چلنے لگا۔ تھوڑا آگے چل کر مجھے وہ جھوپڑی نظر آنے لگی جس میں یقیناً سرکار نامی شخص رہتا تھا۔ میں اس جھوپڑی کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر دستک دینے کے کچھ دیر بعد دروازہ کھل گیا اور سامنے ہی سرکار کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ مطمئن سا ہو گیا اور کہنے لگا، دوست، آج کیسے میرے غریب خانے کا رخ کر لیا؟ میں نے کہا، مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ میری بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ میری کوئی مدد نہیں کر رہا۔ میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ میری بات سن کر اس نے کہا، ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم نے میرا خزانہ مجھے پہنچایا ہے اور اس کی حفاظت کی، اس لیے میں تمہیں پیسے دوں گا۔ تم جا کر بیٹی کا علاج کرواؤ۔ میں نے ممنون نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر غائب ہو گیا۔ جب باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں پیسے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر مجھے دیے۔ میں نے جھجک کر کہا، کیا میں تمہاری وہ کتاب صرف ایک نظر دیکھ سکتا ہوں؟ سرکار باہر بری طرح سے چونک پڑا۔ کیوں؟ تم کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ میں بوکھلا کر رہ گیا۔ وہ میں نے غربت اور تنگدستی سے مجبور ہو کر ایک عمل کیا تھا، مگر میں نہیں جانتا کہ عمل پورا کرنے کے لیے مجھے آگے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ میں نے آگے کا لکھا ہوا نہیں پڑھا تھا۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا۔ اس نے غور سے میری طرف دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں کتاب دے دوں گا دیکھنے کے لیے، مگر میری ایک شرط ہے جو تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ اس کے بعد تمہیں وہ کتاب دیکھنے کی اجازت ملے گی۔ کون سا کام؟ میں نے کہا، نہیں، ابھی نہیں، وہ میں وقت آنے پر بتاؤں گا۔ اس نے کہا، مگر اس طرح تو میرا کیا ہوا عمل بہت دن گزر جانے پر نکارا ہو جائے گا۔ میں نے الجھتے ہوئے کہا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تمہارا کیا ہوا عمل نکارا نہیں ہوگا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا۔ میں اس کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے چلا آیا اور سیدھا اسپتال پہنچ گیا۔ وہ پیسے اتنے تھے کہ میری بیٹی کا علاج بہت اچھے طریقے سے ہو سکتا تھا۔ چند دن اسپتال میں رہنے کے بعد ڈاکٹروں نے چھٹی دے دی تھی۔ اگرچہ وہ مکمل صحت یاب نہیں ہوئی تھی، مگر پہلے سے بہت بہتر تھی۔ کچھ دن تو خیریت سے گزرے۔ ایک دن جب میں حسب معمول قبرستان میں قبروں پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا، جب 2-3 مرد میرے پاس آئے اور مجھے قبر بنانے کا کہا۔ جب میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ گاؤں کی ایک عورت مر گئی ہے اور اس کے لیے قبر بنوانی ہے۔ میں نے جلدی سے قبر کھودنی شروع کر دی۔ دوپہر کو لاش کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ چند دن بعد مجھے پھر اپنے عمل کی فکر ہونے لگی۔ میں نے سرکار کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ آخر پوچھوں تو صحیح، کیا چاہتا ہے وہ؟ میں اس کی جھوپڑی پر پہنچا تو وہ خوش ہو گیا۔ اس نے کہا، میں تمہارا ہی منتظر تھا، یاد ہے نا میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا تو وہ بولا، وہ کام یہ ہے کہ جو عورت مر گئی ہے اس کے بالوں کو کاٹ کر میرے پاس لے آؤ، پھر میں تمہیں وہ کتاب دکھاؤں گا اور تم اپنا ادھورا چھوڑا ہوا عمل پورا کر لینا۔ میں اس کی بات سن کر لرز گیا تھا۔ کسی کی لاش کی بے حرمتی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ میں نے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتا، کسی لاش کی بے حرمتی نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے غضبناک نظروں سے دیکھا اور کہا، ٹھیک ہے، اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے تو اپنا کیا ہوا عمل بھی بھول جاؤ۔ میں یہ سنتے ہوئے جانے لگا، مگر پھر اچانک ہی مجھے اپنی بیٹی کی حالت یاد آ گئی اور اپنی غربت اور تنگدستی یاد آنے لگی۔ میں رک گیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں نے کہا تو سرکار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے کہا، تمہیں صرف اس عورت کی قبر کھود کر اس کے بال کاٹنے ہیں، مگر یہ کام آج رات ہی کرنا ہوگا۔ میں اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتا، ورنہ میں خود کر لیتا۔ اس نے کہا اور ایک طرف چل پڑا۔ میں واپس گھر آ گیا۔ جو ہی رات ہوئی میں تیار ہو کر بیٹھ گیا۔ سب کے کھانا کھانے اور سونے کے بعد میں اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے اپنا بیلچہ اٹھایا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ رات کے گھپ اندھیرے میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ چاند بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ میں آہستہ آہستہ محتاط قدم اٹھاتا ہوا اس عورت کی قبر کے قریب آ گیا اور بیلچہ اٹھا کر کھودنے ہی والا تھا
जब मुझे अपने सामने एक सफेद दाढ़ी वाला नजर आया। मैं उसे देखकर खौफजदा हो गया था। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने हकलाते हुए उससे कहा। मेरी बात सुनकर उसके पुरनूर चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैं कौन हूँ ये मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, मगर इससे पहले तुम मेरे कुछ सवालात का जवाब दोगे। उसने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे सवालात के जवाब दूंगा। मैंने कहा, तुम जिस चीज की वजह से ये सब कर रहे हो, अगर मैं तुम्हें वो सब मैसर कर दूं तो तुम ये सब छोड़ सकते हो क्या, जो तुम अभी करने वाले हो? उसने कहा। तो मैंने उसे हैरानी से देखा और कहा, तुम कैसे जानते हो ये सब? ये सुनकर वो मुस्कुरा दिया और कहने लगा, मैं एक जिनजाद हूँ और तुम जो काम करने वाले हो वो इंतहाई गलत है। तुम्हें जिस खजाने की तलाश है, अगर वैसा ही खजाना मैं तुम्हें दे दूं तो तुम ये सब छोड़ दोगे ना? उसने कब्र की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो मैं सख्त शर्मिंदा हो गया। लालच में मुब्तला होकर मैं क्या करने चला था? अपनी आखिरत तबाह करने लगा था। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं अब कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। मैंने शर्मिंदगी से कहा। उसने मेरी बात सुनकर कहा, नहीं, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिससे तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। ये कहते हुए उसने अपने हाथ की मुट्ठी बंद की और खोल दी। उसके हाथ में एक मखमली थैली आ गई। उसने आगे बढ़कर वो थैली मुझे थमा दी। मेरी आंखें नम हो गईं। उसने मुस्कुराकर मुझे देखा और अचानक गायब हो गया। मैं कितनी ही देर अंधेरे में आंखें फाड़े उसे ढूंढता रहा, मगर वो कहीं नजर नहीं आया। मैंने अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर माफी मांगी और सारी रात वहीं रोते हुए गुजार दी। मैं उस जिनजादे का बहुत शुक्रगुजार था जिसने मुझे इतना बड़ा गुनाह करने से बचाया था। सुबह होते ही मैंने उस मखमली थैली को खोला तो ये देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं कि उसमें हीरे जगमगा रहे थे, जिनकी चमक आंखों को खैरा कर रही थी। मैंने जल्दी से उस थैली को बंद कर दिया और दिल में एक बार फिर उस जिनजादे का शुक्रगुजार हुआ जिसने मेरी जिंदगी संवार दी। मैंने घर जाकर उस थैली को एक महफूज जगह पर रखा और नाश्ता करके बाहर आ गया। कब्रिस्तान से गुजरने के बाद मैं उस रास्ते चलने लगा जहाँ सरकार की झोपड़ी थी। मैं झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। थोड़ी देर बाद सरकार ने दरवाजा खोला। मुझे देखकर उसका चेहरा खिल उठा। उसने कहा, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था और तुम आ गए। जल्दी से मुझे मेरी मतलूबा चीज दो ताकि मैं अपना चिल्ला पूरा कर सकूं। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, मैंने तुम्हारा काम नहीं किया। मैं गलत काम नहीं कर सकता। ये सुनकर वो आग बगोला हो गया। उसने आगे बढ़कर मुझे धक्का दिया और अपने हाथ में मौजूद खंजर मेरे पेट में उतारने वाला था कि अचानक ही उसकी चीखें गूंज उठी। मुझे अपने सामने वही नूरानी चेहरे वाला जिन नजर आया। उसने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया तो सरकार को आग के शोलों ने अपनी लपेट में ले लिया। थोड़ी देर बाद वो जलकर राख हो गया। मैंने उस जिन का शुक्रिया अदा किया और अपने बाल बच्चों को लेकर दूसरी जगह हंसी खुशी रहने लगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा ना करे ऐसा कोई वाकया पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में जरूर बताइए।